प्राणारामं निखिलजनकं सर्वशेषावतारम् विश्वप्रेम्णा पुलकिततनुं विश्वजीवानुकूलम् आर्तत्राणं परमशिवदं सन्तरूपाभिरामम् राधास्वामी स्वमहिमधरं सद्गुरुं त्वां नमामि नमामि श्रीमहालक्ष्मी षोडशीकान्तं सुन्दरं श्रीमन्तमनुकूलं त्वां श्रीमनमोहिनी सुतम्। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम अनादि अनंत तुम्हें अभिराम वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम अनादि अनंत तुम्हें अभिराम। केते अवतारे अइलय भावे बुद्ध चैतन्य रामकृष्ण भावे केते अवतारे अइलय भावे बुद्ध चैतन्य रामकृष्ण भावे मोहम्मद जीसु राम परशुराम मोहम्मद जीसु राम परशुराम रहिल सबुरी धम वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम अनादि अनंत तुम्हें अभिराम। আজি আসিয়াছ অনুকূল ভাবে কূলে লগাইব এহা মোহি ভাবে
আজি আসিয়াছ অনুকূল ভাবে কুড়ে লগাইব এহা মোহি ভাবে কল্কি অবতারে পাপি তারু অছ কল্কি অবতারে পাপি তারু অছ জীব জগত গায়ে বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম অনাদি অনন্ত তুমি অভিরাম অনাদি অনন্ত তুমি অভিরাম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম জীবন জ্যোতি জিয়ন্ত মরণ শ্রী সতনাম অমৃত সিঞ্চন জীবন জ্যোতি জিয়ন্ত মরণ শ্রী সতনাম অমৃত সিঞ্চন সবু জানি শুনি অজଣା কাহিকি সবু জানি শুনি অজଣା কাহিকি বল ভাই বন্দে পুরুষোত্তম 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 ও বল ভাই বন্দে পুরুষোত্তম মায়া জালে মন ছন্দি হইছিনা কাহিকি করুছ মিছে বিলাপ কাহিকি করুছ মিছে বিলাপ সঞ্জ বুড়িলাଣି সরি নাহি বাট ଯିବୁ ବହୁ ଦୂର ବେଳ ଅଳପ ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇରେ ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇରେ ବୋଲ ଭାଇ ବନ୍ଦେ পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম ও বল ভাই বন্দে পুরুষোত্তম কেউ জনমর কলা কর মরু এ জনমে সুখ দুঃখর ভোগ এ জনমে সুখ দুঃখর ভোগ কালর দাউরু বঞ্চিবুরে যদি ভজি সে পয়রা হুয়া সদাগ जाया सुतर सब सात पर जाया सुतर सब सात पर बोल भाई बंदे पुरुषोत्तम 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 हो बोल भाई बंदे पुरुषोत्तम जीवन जोगी जियंता मरण श्री सतनाम
अमृत सिंचन जीवन जोठी जियंत मरण से सतनाम अमृत सिंचन सबु जानी शुणी अजणा कहीं सबु जानी शुणी अजणा कहीं बोलो भाई वंदे पुरुषोत्तम 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 बोलो भाई वंदे पुरुषोत्तम बोलो भाई वंदे पुरुषोत्तम। आसीच प्रभु तुम्हें त्रिताप हरणे आसीच प्रभु तुम्हें त्रिताप हरणे नाही नाही आओ भय नाही भोगो नाही नाही आओ भय नाही तुमको प्रणाम जनाए प्रेमी तुमको प्रणाम जनाए। जीवने दुख वेदने भरा थिला हियाजे व्यथा रोदने कातर जीवने दुख वेदने भरा थिला हियाजे व्यथा रोदने तुम्हें तो आसिल हे स्वामी मोर तुम्हें तो आसिल हे स्वामी मोर नाही आउ शोकताप नाही ओगो नाही आउ शोकताप नाही तुमको प्रणाम जनाए प्रेमी तुमको प्रणाम जनाए।
ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର ଦରଦ ଭରା ଡାକରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ବିଶ୍ୱେ ଅଭିନବ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବିଲୋକନ୍ତି ସୁର ନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବରେ ବାବା ଦର୍ଶ ତାର ଧ୍ୱନିତ ହେବରେ କଥାର ନିର୍ଝର ମନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ମହାସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ମହାସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ମହାତୀର୍ଥରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ দুঃখী এটি পাইবে সান্ত্বনা অশান্ত প্রাণরে শান্তির মূর্ছনা ভক্ত সাধক জীবনে লভিব সমুত্থান ভাব হইসি চেতনা ধনী মানি গুণী সাধু সন্ত মুনি ধনী মানি গুণী সাধু সন্ত মুনি সাধকর সমাবেশরে দুয়ার খোলি দেখরে তার ভুবন ভুলা রূপরে দুয়ার খোলি দেখরে জীবন্ত জাগ্রত লক্ষ্মী নারায়ণ প্রাণ ভরি জীব কররে দর্শন জীবন্ত জাগ্রত লক্ষ্মী নারায়ণ প্রাণ ভরি জীব কররে দর্শন নিত্য বৈকুণ্ঠ নব বৃন্দাবন ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন নিত্য বৈকুণ্ঠ নব বৃন্দাবন ভক্ত ভগবান পূর্ব মিলন সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী পুরুষ উত্তম মুক্তি মহোদধি সর্বদেবা দেবী মিলন বেদী দুয়ার খোলি দেখরে তার ভুবন ভুলা রূপরে দুয়ার খোলি দেখরে তার ভুবন ভুলা রূপরে যুগ যুগর তে নিজর যুগ যুগর কেতে নিজর দরদ ভরা ডাকরে দুয়ার খোলি দেখরে তার ভুবন ভুলা রূপরে দুয়ার খোলি দেখরে তার ভুবন ভুলা রূপরে দুয়ার খোলি দেখরে
ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡେ নুহি মু একাকি, এ দুনিয়া দাণ্ডে নুহি মু একাকি, তুমে মোর সবু কিছু, তুমে মোর সবু কিছু প্রভু, তুমে অছ বলি মু অছি, তুমে অছ বলি মু ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି
देवघर से निकला था दीक्षा देने के कार्यक्रम में, यहाँ 4 बजे पहुंचा, तब से बैठा था। अभी हमको बोला कि आप लोग कुछ बोल दें। तो एक बात है, हम जब निकले थे देवघर से, इसलिए निकले थे कि मेरा दीक्षा सबसे कम होती है। मेरा कार्यक्रम में सबसे कम दीक्षा मैं देता हूँ। अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो लोग अनेक देते हैं, मेरे घर के जो भाई लोग हैं वो लोग अनेक देते हैं, मेरे जो सहकर्मीगण हैं वो लोग अनेक दीक्षा कार्यक्रम करते हैं, मुझसे कम होता है। तो मैंने तय किया कि सबसे सहयोग मांगो, दादा लोग माँ लोग सब जागरण करके हर जनपद में दीक्षा जुगाड़ करेंगे और हम चले आएंगे दीक्षा देंगे। इस अवसर पे आज मैं यहाँ बलांगीर आके पहुंचा। मैं एक शर्त भी दिया था कि मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं करूंगा, जो भी बोलूंगा आवाज में बोल दूंगा, जो उसको सुनना है वो सुन लेंगे। तो इस अनुसार मैंने आज यहाँ पहुँचते कुछ बात बोल रहा हूँ। यदि आपका कोई सहयोग मिला इससे तो आप इसको ग्रहण कीजिएगा। सबसे पहली बात है विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब जो विद्या अर्जन करते हैं। मानिए अभी विद्यार्थी आप लोग जो हैं यहाँ, वो सबसे सुनहरा मौके से गुजर रहे हैं। घर में माँ बाप है, छत्र छाया है, खाने का सोच नहीं करना पड़ता है, जो कहाँ रहेंगे छत के विषय में सोच नहीं करना पड़ता है, सब आराम से जी रहे हैं। इस विद्या अर्जन के काल में हमारा एक ही कर्तव्य, एक ही मकसद रहना चाहिए कि मैं कोई ऐसा विद्या को हासिल करूं जिससे भविष्य में मेरा पेट, मेरा परिवार चल सके ठीक ठाक। ये परिवार और पेट चलाने के संदर्भ में ये काम करता हूँ। यही मेरा काम है, यही मेरा कार्यक्रम है। तो विद्यार्थी आप लोग खेल कूद के मैदान में यदि समय गवाते हैं तो समय गवाइए मत, उस समय का उपयोग कीजिए। यदि खेल के माध्यम से आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, जरूर बनाइए। लेकिन एक बात है, खेल के मैदान में यदि अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। 125 करोड़ है देश की आबादी, उसमें क्रिकेट खेलता है सिर्फ 11 आदमी, तो बाकी का नहीं रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ समय मत गवाइए। यदि सीरियसली आप खेलना चाहते हैं, आज सचमुच खेलना चाहते हैं, तो उसको बनाइए अपना करियर। जो पढ़ाई में करियर बनाना चाहते पढ़े, जो लोग नाच सीखकर करियर बनाना चाहते नाच सीखे, जो लोग गाना सीखकर करियर बनाना चाहेंगे तो गाना सीखें। जो जिसको जैसे मर्जी जिसमें आनंद मिलता है उसी आनंद को लेने के लिए आप अपना करियर बनाइए। इस विद्यार्जन के लिए यदि आप आनंदित और हर्षोत्फुल्ल होके यदि आप विद्यार्जन करने के लिए प्रयासशील है तो मान लीजिए आपके पास एकाग्रता रहेगा। बहुत ही जरूरी चीज है ये एकाग्रता। और दूसरा है निष्ठा। एकाग्रता और निष्ठा यदि विद्यार्थी के पास रहेगा तो वो कोई भी विद्या को अर्जन कर सकती है। ये दोनों चीज जरूरी है। विद्या अर्जन होने के बाद सब कोई नौकरी का तलाश में जाते हैं। तो जो लोग नौकरी करने के तलाश में हैं, यदि आप बहुत विद्वान हैं और आपको मान लीजिए कोई सिक्योरिटी जॉब मिल रहा है तो आप उसी को ले लीजिए। हम बोलेंगे मत छोड़िए इसको। आप बहुत विद्वान हैं, एक स्थानीय लोकल कोई नर्सिंग होम में आपको स्वीपर का नौकरी मिल रहा है, आप छोड़िए मत, उसको ले लीजिए। क्योंकि कूद के कोई 2 तला पर नहीं चढ़ता है, उसमें सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के हमको 2 तला में पहुंचना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि आप करना चाहते हैं करियर तो आप इस सीढ़ियों पर पैर रखते रखते 2 तला में अपना मंजिल तक पहुंचे। एक नौकरी छोड़िए, अच्छा नौकरी दूसरा पकड़िए, इसको छोड़िएगा तो तीसरा पकड़िए, ऐसा करके पकड़ पकड़ के उठिए। जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरा एक परामर्श है कि व्यवसाय जैसे दूध से छेना बनाते हैं एक प्रक्रिया से, तो वैसा जीवन से पैसा बनाना एक कायदा या प्रक्रिया है। क्या
व्यावसायिक पंचनिधि जो ठाकुर जी ने बोले हैं, वो व्यावसायिक पंचनिधि के ढांचे पर आप व्यवसाय शुरू कीजिए। सबसे पहले व्यवसाय पंचनिधि क्या है, वो किसी केंद्र मंदिर से आपको जानकारी मिलेगा, नहीं तो कोई कर्मी दादा जो ऋतिक जाजक अधूर्य हैं उनसे आपको जानकारी मिलेगा। यदि उनसे संयोग नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने इंटरनेट वगैरह में अपना सवाल डाल दीजिए, कोई ना कोई उसका उत्तर दे देगा, उससे भी आपको जानकारी मिल सकता है। ये ढांचा को बरकरार रखिए, इस नियम के दायरे में व्यवसाय को बांधे रखिए, और जो निवेश कर रहे हैं उसका 2% यदि नहीं आता है तो मान लीजिए व्यवसाय पंचनिधि में कहीं आपका खोट हो रहा है। यदि खोट कहाँ हुआ है उसका निर्णय कर पाते हैं तो उसको ठीक ठाक कर लीजिए, फिर से शुरू कीजिए। और यदि आपको निर्णय नहीं कर पा रहे कहाँ आपका प्रॉब्लम आया है, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, वो यदि आपको नहीं नजर में आ रहा है तो व्यवसाय बंद करके कुछ दिन नौकरी कर लीजिए, जब नजर में आएगा फिर आके कीजिए। लेकिन जिस बर्तन में छेद हो चुका है उसमें पानी और मत डालिए, पानी निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट का 2% रिटर्न आना ही है, ये आवश्यक है, नहीं तो मान लीजिए व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल रहा है। और यदि आप छेदा हुआ बर्तन में पानी डालिएगा तो इतना कर्ज में डूब जाइएगा कि घर परिवार लेके आप सचमुच परेशान में पड़ जाइएगा। इसलिए मैंने ये बात बोला आप लोग को। जो लोग माँ बाप यहाँ हैं, बच्चे का शादी ब्याह के लिए सोचते हैं, वो लोग के लिए मेरा एक परामर्श है, आप लोग एक काम कीजिएगा, अपने बेटियों को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब सिर्फ सजना धजना नहीं, कहाँ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे पोशाक पहनना चाहिए, कैसे कथा बोलना चाहिए, समुदाय अभिव्यक्तिगत प्रकाश को सिखाइए, कैसे सजना चाहिए समुदाय, क्योंकि उसके ऊपर भविष्य में एक परिवार पलेगा, बसेगा, इसलिए ये सिखाइए। और बेटाओं को बोलिए, बेटों को बोलिए कि आप लोग कर्म प्रांता सीखे। बेटों को बोलिए कि तुम्हारा चेहरा से कोई परिचय नहीं होता है, परिचय होता है तुम्हारा कर्म प्रांता के ऊपर, इसी से तुम्हारा परिचय। फिर क्या कीजिएगा माँ बाप लोग, आप लोग कीजिएगा अपने रिश्तेदारों को बोलिएगा, अपने हितैषी जन को बोलिएगा, अपने सहजाति के जो आदमी हैं उनको बोलिएगा, ठीक वैवाहिक संपर्क संबंध आ जाएगा। और क्या, जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं एक कहानी बोलता हूँ। देवघर में मैं जहाँ आश्रम में, ठाकुर जी का आश्रम में रहता हूँ, वहाँ एक लड़का है जो सहयोग करने के लिए आता है आश्रम में, और वो लड़का पीछे का गांव में ही रहता है। उसका बेटा खेलता कूदता बेटा अचानक बीमार पड़ गया, बिस्तर में लेटा रहा, बहुत इलाज कराया, कोई ठीक नहीं हुआ। तो लाचार अवस्था में आके हमको बोलता है, दादा क्या करें, हमको कोई सुझाता नहीं है, इलाज कराए, सब कुछ कराए, कुछ उपाय नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला तो रुक, एक लड़का था वहाँ, उसको बोला इंटरनेट खोल के देख, तो ये जैसा बोल रहा है उसके माफिक जो जो बोलता है उसको दबाते जा, लिखते जा। तो लिख के निर्णय किया जो इंटरनेट ने, वो रोग का चिकित्सा एलोपैथी मत में नहीं था। एलोपैथी चिकित्सा से उसका कोई सुधार नहीं हो सकता, यही जानकारी इंटरनेट ने दिया। तो मैंने एक आयुर्वेदिक शिक्षक है भुवनेश्वर में, उनका मदद लिया। उन्होंने फोन पर एक दवा बोल दिए, जो दवा देवघर बाजार से प्राप्त करके उस लड़का को दे दिए, बोले जाके बेटा को खिला दे। अब बेटा वही दवा खा के स्वस्थ हो गया, फिर से खेल कूदना करना शुरू कर दिया, अभी तक भी वो स्वस्थ है। तो मैंने ही कहानी इसलिए बोला कि पहले हम लोग को जानकारी रखना चाहिए हमारा क्या हुआ है, क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, धन लगाना चाहिए या नहीं, सब कुछ जानिए, खुद के बारे में जानिए। और ये इंटरनेट आप लोग से यदि नहीं होता है, घर के बच्चे जो हैं वो इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, शातिर हैं, उन लोग को मदद ले लीजिए। वो लोग अपना मोबाइल से भी खोल सकेंगे, वो लोग कंप्यूटर से भी खोल सकेंगे, और आपको जानकारी दे देंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर एक अच्छे से डॉक्टर से पास जाइए जो नजदीक में है,
इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नजदीक में जो भी मिल रहा है उनको सहयोग ले लीजिए और उस सहयोग के साथ क्या कीजिएगा, आनंद में रहिएगा। डॉक्टर खाली चिकित्सा करेंगे, दवा खाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जहां आनंद है, जहां हर्ष है, वहां कभी रोग नहीं ज्यादा दिन टिक पाता है। रोग वहीं रहता है जहां हमारा मन खराब रहता है, हम मायूस रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। उस वक्त रोग आके हमारे वहां घर दबाता है, वो आके वहां बैठ जाता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। यही उपाय है। अब क्या करें, आनंद में रहने का कोई एक उपाय या साधन हमको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मेरा अस्तित्व सब समय चाहता है कि आनंद में रहें। सबका अस्तित्व चाहता है, सब हम लोग चाहते हैं आनंद में जिए, आनंद से रहें। लेकिन उपाय क्या है? उपाय तो खोजना पड़ेगा। एक पारिवारिक स्थिति हम बोलते हैं, घर में पति बोलता है हमको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, हमका खाना इस तरह चाहिए। पत्नी बोलती है मुझे ये साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब चाहिए। बेटा बोलता है आज मुझे ये देना चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको सिनेमा जाना है, हमको उधर जाना है, इधर करना है, दोस्त लोग को खिलाना है, या तो बाइक में एक मोटरसाइकिल हमको चाहिए। बाप पालेगा कि नहीं वो भी नहीं देखेगा, बेटा चाह लिया कि हमको दीजिए। इस अवस्था, इस स्थिति होती है। और स्वार्थ का जो पूर्ण होता है तब हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, बोलते हैं थैंक यू। और परिवार वाले सब सोचते हैं ये थैंक यू ही है प्रेम। ये प्रेम नहीं है, प्रेम ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आभार व्यक्त करना है, ये थैंक यू है, थैंक यू प्रेम नहीं है। मेरा पत्नी मेरा कोई खाना पकाएगी नहीं, कोई भी काम करेगी नहीं, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा पति मेरा कोई ख्याल नहीं रखेगा, कुछ देखभाल भी नहीं करेगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा बाप मुझे कपड़ा नहीं देगा, मुझे पैसा नहीं देगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। प्रेम होगा निःशर्त निस्वार्थ, कोई शर्त नहीं रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा, तभी प्रेम है। प्रेम का परिचय ऐसा ही होता है, कोई लेन देन का ठिकाना नहीं वहां। और हम लोग क्या करते हैं, पारिवारिक जीवन में कोई टीवी में व्यस्त रहते हैं, कोई मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, कोई अपना इंटरनेट खोल के व्यस्त रहते हैं, सब अपने अपने धुन में रहते हैं। एक साथ तो रहते हैं एक छत के तले, लेकिन अपना मन नहीं खोलते हैं कोई किसी के पास। ना पति पत्नी मन खोलता है, ना बेटा बाप मन खोलता है, ना बेटी माँ मन खोलती है, ना भाई बहन मन खोलता है। मन खोलने से ही संघात आ जाता है। जब भी हम लोग मन खोलने का कोशिश करते हैं, लगभग संघात आ जाता है। कोई कोई घर में तो शुरुआत में ऐसा होता है कि इतना प्रेम पति पत्नी में कि आवाज भी नहीं निकलता है, और कुछ ही दिन जाने के बाद उसी परिवार से हाउ 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 आवाज आता है। क्यों? एक परिवार वाले एक साथ रह रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वो नजदीक में है, लेकिन अंतर उन लोग का बिछड़ गया है, अंतर में दूरी हो गया। हम दूर का आदमी को कैसे बुलाते हैं, ओ जी सुनिए, और नजदीक को बोलते हैं ओ जी सुनिए। दोनों में फर्क है। चिल्लाता कब है आदमी? जब मन दूर हो जाता है तब चिल्लाता है। झगड़ा कब करता है? मन जब दूर हो जाता है तब चिल्लाता है। जैसा कि मानो दूर का आदमी को बोल रहा है तो नजदीक में शरीर के रूप से। हम बंधु मित्र जिनसे मिलते हैं, मन छुपा के मिलते हैं, संपूर्ण मन नहीं खोल पाते हैं। जैसे कि दम घुट रहा है, भीतर भीतर कुछ बोलने की आवाज चाहत है, लेकिन हम लोग मन नहीं खोल पाते हैं। मित्र के साथ मिलते हैं तो मन को कुछ रख के और कुछ प्रकाश करके। दोनों आदमी, दोनों बंधु मिलते हैं ऐसा करके। दोनों सहकर्मी, ये परिचय आप लोग जान लीजिए। यदि दोनों सहकर्मी में संघात हो रहा है, मान लीजिए दोनों के पास ठाकुर जी नहीं है, ये कैसा निर्णय है? मान लीजिए एक ढाल में दोनों गाड़ी को छोड़ दिया गया टक्कर खाने के लिए। एक में यदि ड्राइवर रहेगा वो तो ब्रेक मार के बचा लेगा, लेकिन जिसमें ड्राइवर नहीं रहेगा वो टकरा जाएगा। जिसके पास भी ठाकुर रहेगा वो किसी से टकराएगा नहीं, जिसके पास ठाकुर नहीं है वो टक्कर खा जाएगा। ये है ठाकुर जी का दुनिया। तो कर्मी लोग का परिचय ऐसा आप देखिए।
जो दोनों कर्मी में मतविरोध हो रहा है लेकिन मिलन का आखुद ही तैयार नहीं है, तो मान लीजिए इन लोग के पास ठाकुर नहीं है और कुछ है, अहंकार है, स्वार्थ है, लेकिन ठाकुर नहीं है। ये जानकारी रखिए। सबके लिए हम परिचय दे रहे हैं, मेरे लिए भी। ये हमको देखकर भी आप लोग जानिएगा कि ये हमको एक मंच दे दिए हैं, ये आपके बाहर के आदमी मत सोचिए। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ यहाँ आवाज में, वो जमीन में सीधा जमीन में यदि बैठता वो भी हम बता। आप लोग का तो कंबल भी है, मैं कंबल का भी यही ज्ञान का बात बोलता जो मेरे पास है। इसलिए इसमें भ्रमित मत रहिए। इसको आप सोचिए कि हमको देखने का सुविधा के लिए इसको दिया गया है। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ जिसके पास मेरे बोध अनुसार ठाकुर जी का प्रकाश कर रहे हैं। सचमुच ऐसा ही है मैं। दूसरा बात, बेटा को बाप ने बोला, ए बेटा झूठ मत बोल। उसी बाप ने जब पैसा मांगने कोई आया, बोला बेटा जाके बोल तो बाप घर में नहीं है। बेटा सीखा सच बोलना चाहिए, बोला था बाप, लेकिन झूठ बोलो आया। इसका मतलब है कर्म में अंतर किया। माँ बोली थी कि बेटा बाप बुजुर्ग हैं, इनका कहना मान। उसी माँ को देखा बाप से झगड़ते हुए, तो बेटा सीखा अच्छा बात सुनो लेकिन मंद काम करो, गलत काम करो। तो बेटा क्या करेगा? बेटा किया, जब अच्छा स्कूल में दिए वो गाली सीख के आया। बेटा को जब अच्छे पढ़ाई देने का कोशिश किया, वो मंद आचरण भी सीख के आया। और कुछ बड़े होते होते वो नशा भी सीख के आया। क्यों? क्योंकि मैंने बनाना चाहता मधुमक्खी, लेकिन हम लोग के ही कारण से वो भ्रमित होके मलमक्खी बन गया। जहां पैखाना देखता है, जहां मैल देखता है, वहीं जाके वो बैठ के उसको खाता है, उसको ही लेके आता है घर में। और हमको यही सब सहना पड़ता है। बेटा को अच्छा शिक्षा देके अच्छा नौकरी दिलवा दिए, लेकिन वो घूसखोर बनेगा। बेटा बहुत महान आदमी बन गया, बहुत क्षमता हो गया उसका, लेकिन वो सताने वाला बनेगा, वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। ऐसा ही है हमारे पारिवारिक चित्र। ऐसे पारिवारिक चित्र से हम लथपथ होते हैं और जहां भी मन खोलता है संघात लगता है। क्यों? क्योंकि मन का धारण क्षमता कम है। एक बाल्टी पानी में यदि एक कंकर को फेंकेंगे उससे तरंग उठता है, वही कंकर यदि समुद्र में जाके फेंकेंगे तो तरंग खो जाएगा। यानी कि बड़े पानी में तरंग खो गया। तो मन मेरा छोटा है, इसलिए इससे संघात पीड़ित हो जाता है। जो आदमी गाली दिया हम उसको गाली दे दिए, जो मंद आचरण किया मैं मंद आचरण कर दिया, जो हमसे पत्थर मारा था मैं उसको ढेला मार दिया। मैं ऐसा किया क्योंकि हमको सहन नहीं हुआ, मुझे सहने का कोई क्षमता नहीं रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब हुआ क्या? मैंने तय किया कि नहीं, मेरा मन को बढ़ाना है, क्योंकि मुझे ये सब सह के इसको एकदम नियंत्रित करना है। जिस सामाजिक स्थिति में है उस सामाजिक स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। हम लोग इंसान हैं, हम लोग का इंसान जीव से हम कहाँ अंतर में पड़ते हैं? जीव जंतु को चाहिए आहार, निद्रा और मैथुन, यही दिन से वो अच्छे से खुश रहते हैं। लेकिन इंसान आहार, निद्रा, मैथुन से खुश नहीं रहता। उसका मन है, वो सोचता है कि हम जैसे हैं उससे कैसे बेहतर है। मन है, इसलिए वो जीवन धारा को और भी अच्छा करना चाहता है। जिस अवस्था में है उससे कैसे बेहतर रहे, इसका उपाय या निर्णय या पथ खोजता है इंसान। तो यही है हम लोग का जीवन चित्र। अभी इसका उपाय निर्णय खोजते हैं। मान लीजिए जीवन एक तेज धार नदी है, बहुत बहाव है उसमें। उस बहाव में नाव को लेके यदि हम बांधेंगे तो पार में एक गाछ है, उसके साथ बांध दिए तो नाव क्या होगा? जो बांधा हुआ है गाछ के साथ, नाव हिलेगा डुलेगा, ऐसा ऐसा हिलेगा डुलेगा, लेकिन भागेगा नहीं, वो रह जाएगा। क्यों? उसका बंधन ठीक है, बंधन मजबूत है। इस बंधन को मान लीजिए दीक्षा। यदि बंधन नहीं रहता तो वो नाव उस तेज बहाव में जाके, हिंदी में बोलते धुआंधार
और उड़िया में बोलता है जल प्रपात, उसमें गिर के वो नष्ट हो जाता, चूर चूर हो जाता, ये चूर चूर हो जाता, एकदम पूरा ध्वस्त हो जाता। तो दीक्षा इसलिए जरूरी है। दीक्षा क्यों लें, इसका भी एक प्रश्न है। दीक्षा क्यों लेने जाएंगे हम लोग? तो एक बात है, एक गाय, उसका सब साथी चला गया मालिक के साथ, लेकिन एक गाय रह गया जंगल किनारे घास के लालसा में। और जब रह गया तो एक बाघ ने उसको देखा और उसका पीछा किया। जैसा पीछा किया, गाय भागते भागते एक कचरे में जाके फंस गया। गाय को पकड़ने के लिए बाघ भी कूदा, वो भी कचरे में जाके फंस गया। अब वो ऐसा लथपथ हो गया कि ना कचरे से गाय भाग के निकल सकता है, ना बाघ कचरे से निकाल के गाय को खा सकता है, दोनों उसमें फंसा हुआ है। अब कुछ देर बाद बाघ ने प्रयास करने के बाद बोला, देख अभी कचरा सूख रहा है, सूखने के बाद तुझे मैं पहले खाऊंगा। तो गाय ने हंसना शुरू किया, तू क्या खाएगा हमको? मेरा कान से आवाज आ रहा है, शंख का, घंटे का आवाज आ रहा है, यानी कि मैंने घर में नहीं पहुंचा, इसलिए मेरे मालिक हमको खोजने के लिए आ रहे हैं। मेरा तो मालिक है, वो तो हमको खोज के ले जाएगा। लेकिन मालिक के साथ जो आदमी सब आ रहे हैं शंख फूकते हुए, घंटा लेके, मशाल लेके, तो वो क्या करेंगे? तुमको भाला और लाठी भी लेके आ रहा है, तेरा तो कोई मालिक नहीं, तेरा क्या उपाय होगा? तो इसी कारण, रक्षा पाने के कारण हम लोग गुरु ग्रहण करते हैं। हमारे घर में यदि माँ का कुछ होता है तो हमारा कष्ट होता है, शरीर में नहीं, मन में। पति का कुछ होता है तो पत्नी का कष्ट होता है, शरीर में नहीं, मन में। बेटा का कुछ हो जाता है तो बाप का कष्ट होता है, शरीर में नहीं, मन में। बाप का कुछ हो जाता है तो बेटी का कष्ट होता है, शरीर में नहीं, मन में। इस मन को तब रक्षा करना जरूरी होता है, इसलिए हमको ये दीक्षा ग्रहण अनिवार्य होता है। अब कोई कोई बोलता है दीक्षा लिए है, कुछ नहीं हो रहा है। हम बोले पंखा लेके यदि बैठे रहिएगा 100 साल, फिर भी हाथ से यदि नहीं हिलाते हैं तो पंखा का हवा नहीं मिलेगा। हवा खाने के लिए आपको हाथ हिलाना पड़ेगा, तो दीक्षा लेके भी आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा। पहले क्या करें, वो जो सामाजिक स्थिति था, जहां हमको गाली देता था हम गाली दे देते थे, ढेला मारता था तो हम पत्थर मारते थे, मंद आचरण करता तो मंद आचरण करते, बिना सहज के हम लोग ऐसा करते। अभी सोचेंगे ये जो गाली देता ये मेरे गुरु को यदि देता तो गुरु कैसे इस अवस्था में आचरण करते, मेरे ठाकुर जी आप यहाँ कैसे आचरण करते, ये सोचना शुरू कर दिया। हम उसी आचरण को करने का कोशिश करते रहे। ये ढेला मारा था, मैंने पत्थर मारा था, अभी नहीं मारेंगे। ढेला मारने से ठाकुर जी आपको यदि कोई ढेला मारता तो आप क्या करते, कैसे बर्ताव करते इसके साथ? मंद आचरण किया था, इस मंद आचरण को देख के मैं भी मंद आचरण कर दिया, लेकिन ये मंद आचरण यदि आपके साथ करता तो आप क्या करते? मैं वही करूंगा। ये सोच के हम लोग करने का प्रयास करने लगते हैं। जो मेरे ठाकुर जी इन स्थितियों में करते वही आचरण मैं खुद अपना के करने का प्रयत्न करते। और ये जो ठाकुर जी बोले थे, ठाकुरत्व नहीं जगने से कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, ठाकुर भी नहीं, यही ठाकुरत्व जगना कि तुम्हारे ठाकुर कैसे आचरण करते इसका सोचकर उसी आचरण को अपना के चलने का प्रयत्न करना ही है ठाकुरत्व जगना। तब मेरा कोई ठाकुर बोल के है, केंद्र बोल के है। मूर्ख या अज्ञानी वही है जो मंदिर में जाके भगवान को खोजता है, मूर्ति में भगवान को खोजता है, जो मनुष्य में भगवान को खोजता है। ज्ञानी वही है जो खुद के भीतर उसको जगाता है। जैसे मंथन करने से ननी का उत्थान होता है, इन आचरणों को हम खुद करते 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 इन आचरणों से मैं ही इसका संस्कार को ग्रहण कर लिया। मेरा प्रकाश मेरे प्रभु, मेरे मालिक या मेरे ठाकुर जैसा होने लगा। ये प्रकाश होना जरूरी है, यही है जजन। और इन प्रकाश से कभी बोलेगा तुमको देखकर ही लगता है तुम मंगल के दूत हो, तुम ठाकुर के आदमी हो। ये पोशाक जरूरी नहीं है, हम गमछा पहने या हाफ पैंट पहने या धोती पहने, सबसे एक ही परिचय होगा कि हाँ ये ठाकुर जी का आदमी है, यही बुझेगा। तो आदमी बोलेगा आपको देख के लगता ही है आप ठाकुर जी का आदमी।
अब भगवान से एक दिन पूछा गया, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? तो बोलते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयानां न च। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, जोगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? बोला मेरा भक्त जहाँ मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं विराजता हूँ। भगवान ने ऐसा बोला कि जब जहाँ हमारा गुण कीर्तन होता है वहीं मैं विराजता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो आचरण को अपनाए हैं, इसी आचरण के जरिए हम समाज में भी ठाकुर जी का बात बोलते हैं। वो सब्जी वाला के पास बोले, वो फल वाला के पास बोले, वो रिक्शा वाला के पास बोले, वो टेम्पो वाला के पास बोले, वो वैन वाला के पास बोले, सबके साथ जहां तक भी हम जिसे पैसा उधार लिए थे भागते थे, अभी भागेंगे नहीं, पहले पहुंच जाएंगे। बोले गाली देना है गाली दीजिए, लेकिन मैं आपको ठाकुर जी का तो बात बोलूंगा। ऐसा करके प्रकाशित होना है खुद को। ये प्रकाश से क्या होगा? हम जहां जहां ठाकुर जी को प्रकाश करेंगे वहीं वहीं वो उपस्थित रहेंगे। भगवान बोले हैं कि जहां मेरा भक्त मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं विराजता हूं, तो वहीं वो विराजते भी है। ये विराज वो रहेंगे उसी अवस्था में रहेंगे। और इससे क्या होगा? मेरा कुछ बंधु जुगाड़ होगा जाएगा, मेरा कुछ मित्रता पैदा होगा समाज में, जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मेरा सबसे प्रिय चीज जो मेरा गुरु है, मैं उनको वितरण किया था। ये प्रिय बांधवता तैयार हो जाएगा। ये प्रिय बांधवता मेरे कारण जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, ठाकुर जी के लिए नहीं, मेरे लिए जरूरी है, एकदम मेरे लिए। कैसे? वो भी हम बोलते हैं। एक कल्पतरु था, उस कल्पतरु में उसके छाया में जो भी कुछ सोचता आदमी वही पूर्ण हो जाता। ऐसे जादुई गाछ के तले एक पथिक आके थके थके बैठा और सोचा अरे बहुत थके हैं, थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा होता। फट से खाना आ गया, खा लिया। अब खाना खाने के बाद सोचता है अरे बिस्तर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, तो बिस्तर भी आ गया। अब पथिक भरा पेट खाए पिए एकदम सो गया बिस्तर पे, सो के लेट के ऐसा करके सोच रहा है अरे जो भी चाह रहे हैं यहाँ तो सभी पूर्ण हो रहा है, इस गाछ में भूत प्रेत तो नहीं है, आखिर मेरा गर्दन तो मरोड़ नहीं देगा। वो तो सोचा और यूं ही भूत आके उसका गर्दन मरोड़ दिया। हम का प्रार्थना यदि भगवान सुनते तो यही हाल होता है हमारा। हम यदि भगवान से प्रार्थना करते तो यही हाल हम अपना कर बनाते। इसलिए भगवान कोई मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है। हम 100 प्रार्थना करते हैं, 2, 3, 4 पूर्ण होता है, बाकी बेकार जाता है, एकदम बेकार जाएगा ही। क्यों? बेकार से जाना ही है। हम भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान से कैसे बर्ताव करते हैं? जैसे बाप का नौकर है, भगवान आके बोलेगा हे प्रभु आज आपका ऑर्डर क्या है? मेरा बेटा का नौकरी लगा दो। हे प्रभु आज आपका ऑर्डर क्या है? मेरा बेटी का शादी तैयार कर दो। हे प्रभु आज आपका ऑर्डर क्या है? अरे मेरा माँ का पैर में घुटने में दर्द है, उसको ठीक करवा दो, इलाज करवा दो। हम उल्टे भगवान को ऑर्डर प्लेस करते हैं जहां भगवान का ऑर्डर हमको लेना है, और भगवान से संबंध भी नहीं है, ये सब नहीं कर पाते हैं, वो नियम के बाहर है ये सब। राम भगवान है तो उनका पति को कोई उठा के ले जाएगा? यदि उनका इतना ही क्षमता था मेरा ऐसा ही प्रार्थना को पूर्ण कर देगा, तो राम का पति को कोई उठा के ले गया? भगवान से थे। भगवान ने दी थे समुद्र किनारे आदमी जुटा के पुल बनवाना क्यों पड़ा? है पत्थर फेंको, लकड़ी फेंको, ये करो वो करो, पुल बनाने के लिए ये परिश्रम क्यों? वो तो भगवान थे। मैं भगवान हूँ, पुल बन जा, सही पुल बन गया था। तो नहीं तो हुआ क्योंकि उसका क्षमता ही नहीं है ये सब करने का। रावण के सामना जब हुआ राम से तो वो तो भगवान थे, वो तो बोल सकते थे मैं भगवान हूं तू मर जा। नहीं हुआ, मरा नहीं, युद्ध करना पड़ा, कर्म करना पड़ा। यदि भगवान को इस दुनिया में आके कर्म करना पड़ता है, मैं खुद खेत का मूली हूँ, उनका संतान होके मैं खुद कर्म बगैर ही बोलते रहूंगा और वो मेरा सुनते रहेंगे? नहीं सुनते हैं। जान कर रखिए वो 100 में से 3-4 जो आपका मन्नत पूर्ण हो जाता है
वो बस के सामने बोलिए वो भी पूर्ण हो जाता। वो नाली के सामने भी जाते बोल के जाइए वो ये 3-4 ही पूर्ण होता। ये बांस के सामने बोलिए तो भी पूर्ण हो जाता। भगवान के द्वार में जाना नहीं पड़ता। भगवान के सुनाने का कोई कार्यक्रम है, एक उपाय है, उपाय को जानिए। 100% सुनेंगे, लेकिन उपाय ढूंढिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग जानिए अपना माँ बाप भाई बहन बच्चे सबके लिए, पति पत्नी सब हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, इन लोग के साथ जो प्रार्थना करते हैं ये सब भगवान नहीं सुनते हैं, क्योंकि इन सबके साथ मेरा स्वार्थ संबंध है, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इन प्रार्थनाओं को बोलता है सकाम प्रार्थना। सकाम प्रार्थना कभी भगवान सुनते नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। नहीं तो मेरा अवस्था वो कल को तरु छाया में जो प्रतीक हुआ था उसी माफिक हो जाएगा, इसलिए वो सुनते नहीं। ये सकाम प्रार्थना नहीं सुनते हैं। वो सुनेंगे जब मैं उस दादा के लिए करूंगा, उस माँ के लिए करूंगा, उस बहन के लिए करूंगा या वो भाई के लिए करूंगा, तो ये सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग के साथ मेरा किसी का साथ मेरा स्वार्थ संबंध नहीं है। मेरा प्रार्थना संपूर्ण निष्काम है। मेरा निष्काम प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे। तो मैं हल चलाऊंगा, बीज पोतूंगा। और मैं जब जागरण किया था, प्रिय को परिवेशन किया था, हम जब उनका गुण कीर्तन किया था, वो जो बंधु तैयार हुआ था समाज में, वो लोग का प्रार्थना से मेरा समूचा मन्नत पूर्ण होगा। मैं कर्म करूंगा, फल का आशा नहीं करूंगा, कोई प्रार्थना नहीं करना है, सिर्फ इन बंधुओं से प्रार्थना करवाइए खुद के लिए। 100% आपका सब पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप कर्म करना पड़ेगा ठीक ठाक। आप कर्म कीजिए और इन लोग से प्रार्थना करवाइए, जरूर पूर्ण होगा। उपाय यही है, और कोई चारा नहीं। आप विश्वास कीजिए और कोई चारा नहीं। आप विश्वास कीजिए, बाबाईदा छू देने से कोई मंगल होता है? ठेंगा होता है। मैं यदि छू देता तो मेरे बच्चे लोग को डॉक्टर दिखाना नहीं पड़ता। बाबाईदा छू देगा कुछ मंगल हो जाएगा, ठेंगा होता है, कुछ नहीं होता है। हमको यदि कलम छू देते तो मेरे बच्चे लोग को पढ़ना नहीं पड़ता, वो लोग को पढ़ना पड़ता है। विश्वास कीजिए, ये सब कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विधि के बाहर है। विधि के दायरे में रहकर ही विधि जो दिए हैं हमको वही चलते हैं खुद। इसलिए उनको विधाता कहता है। भगवान का अन्य रूप, अन्य जो हम पुकारते हैं, दूसरे नाम से जो पुकारते हैं, यही है विधाता। क्योंकि वो विधि से बंधे हुए हैं, विधि को वो खुद पालन करते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे हमारे लिए। अब क्या दूसरा कोई उपाय नहीं भगवान को सुनाने का? हाँ है, जरूर है। दूसरा और एक उपाय है। एक आदमी था, मेरे परिचय बहुत दिन से उनके था, तो उनका बेटा नौकरी करता था कोलकाता में। उसको कोई झगड़ा हो गया, जहर खिला दिया। जहर का असर इतना फैला गया, दुश्मनी के कारण जहर दे दिया था, वो चला गया सीधा नर्सिंग होम में। जहर इतना फैल गया, डॉक्टर बोला कोई उपाय नहीं। बाप रोते रोते मेरे पास आया, क्योंकि मैं संयोग से कलकत्ते में ही थे उस वक्त। आके रो रहा है कि क्या करें। और हम उस लाचार बाप को गाली दे रहे थे। हम बोले, ठाकुर आपका बाप का नौकर है, आप क्यों बोला कि मेरा बेटा को प्राण भिक्षा दीजिए? क्यों बोले आपने कि मेरा बेटा ऐसा स्थिति में है, ठाकुर प्राण भिक्षा दे दो, प्राण भिक्षा दे दो? क्यों बोला? आप क्यों ऑर्डर दिए ठाकुर को? ऑर्डर आप पर लेना है कि ठाकुर को ऑर्डर देना है? बहुत गाली दी उसको। फिर बोले, डॉक्टर क्या बोला? बोला कोई आशा नहीं। हम बोले आप बाप हैं, आपका मन क्या बोलता है? बोला कोई आशा नहीं। बोले सब जीरो? बोला हाँ जीरो, एकदम पूरा शून्य, कोई आशा नहीं दिख रहा है। हम बोले अब जाइए ठाकुर जी के पास, बोलिए कि मैं ठाकुर जी गलत प्रार्थना किया, मैं एक लाचार बाप हूं, उसका इलाज करा रहा हूं। यदि उसका जिंदगी से उसका मंगल है तो जिंदगी दीजिएगा, और यदि उसका मौत से उसका मंगल है तो मौत दीजिएगा। मेरा कोई प्रार्थना नहीं, आपका जो मन सुख कर दीजिएगा मेरे बेटे को।
कपट मत कीजिएगा, एकदम अंतर से ही प्रार्थना कीजिए। कोई मेरा इच्छा नहीं, तो जिएगा कि मरेगा कोई इच्छा सुन के दिए, छोड़ दीजिए ठाकुर जी के ऊपर। आपका कर्तव्य निभाइए, जो जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्रार्थना मत कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपका कुछ चाहत नहीं है, उनका चाहत ही आपका चाहत, ऐसा करके प्रार्थना कीजिए। लाचार बाप मेरा बात सुन के वैसा ही प्रार्थना किया, कोई छल कपट नहीं, अंतर से प्रार्थना किया। दोपहर का 1:30 बज रहा था, आप लोग बोलते हैं सारे कोटे, 1:30 बज रहा था, तो 1:30 बजे टाइम में वो ये काम किया। शाम को जो बेटा का कोई आशा नहीं था, वो बैठ के बोलता माँ भूख लगे खाने लगे। जीवन उसका स्पंदन प्राप्त किया। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, कोई बचाने वाला नहीं, पति सब सिर झुकाए बैठे हुए हैं, कोई आता नहीं, कोई बचाएगा नहीं। दोनों हाथ से ऐसे करके रक्षा करेंगे खुद को, और इधर खींच रहा है उधर खींच रहा है, गिरा रही है, हमको छोड़ दो। क्या करेगा? नंगा करेगा, भरे सभा में सबके सामने एक गृह वधू को नंगा करेगा। सोचिए कितना शैतानी बुद्धि लगाया है। शैतान का तांडव से भयभीत होके द्रौपदी जब देखी और रक्षा संभव नहीं है, तो एक हाथ फैला के बोला कि मधुसूदन रक्षा करो। सुने नहीं, प्रार्थना भी करोगी, खुद को बचाओगी, नहीं सुनेंगे। नहीं सुना भगवान, एक हाथ फैला के वो बोले कि मधुसूदन रक्षा करो, नहीं सुना भगवान, छोड़ दिया। अब ऐसा खींचा पड़ा कि लगता है अभी कपड़ा खोल जाएगा। उपाय कोई चारा नहीं, जब देखा तो दोनों हाथ फैला के बोली हे मधुसूदन रक्षा करो। जैसा दोनों हाथ फैलाया, स्वयं भगवान ने उनको कपड़ा दिया, इतनी कपड़ा दिए कि शैतान उसको नंगा नहीं कर पाया। यही उपाय होता है। संपूर्ण समर्पण कीजिए, कोई चिंता नहीं रखिए, तो एक उपाय है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। आप कर्म कीजिए और प्रार्थना करने वाला सहयोगी पड़ोसी जुटाइए, जिसके साथ आपका कोई स्वार्थ संबंध है। इसलिए हम बोले प्रिय का परिवेशन कीजिए समाज में, तो ये बंधु आपको जुटेगा। इनका प्रार्थना से आपका सब मन्नत पूर्ण होगा। यही उपाय है, यही दो उपाय है भगवान को सुनाने का। अब फिर लौटते हैं अपना संसार के चित्र में। जैसा चित्र हमने बोला था, उस चित्र एक परिवार किसी के साथ किसी का ठीक ठाक संपर्क नहीं, बेटा इधर उधर हो गया, सब अपना स्वार्थ लेके व्यस्त है। इसी अवस्था में लेके एक परिवार गया था देवघर में, आके हमको बोलता है कि एक उपाय बोलिए क्या करें। हम बोले हम साधारण सा इंसान क्या बोले आपको, एक काम कीजिए, सब कोई एक साथ रात का भोजन कीजिए, क्योंकि दिन में तो सब कोई अपने अपने निकल जाते हैं, रात का सब भोजन एक साथ कीजिए। और भोजन करके उठिए मत, हाथ को सूखने दीजिए, तब तक बात कीजिए जब तक आप दिन भर का जितनी बात है सब संपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक बात करते रहिए। बात खत्म कीजिए, दिन भर का बात खत्म करने के बाद हाथ धो के सो जाइए। सुबह उठ के सब एक साथ प्रार्थना कीजिए। 1-1.5 महीना के बाद वो परिवार फिर लौट के आया देवघर। जो परिवार किसी के साथ किसी का संपर्क ठीक से नहीं चल रहा था, वही परिवार हंसमुख होकर आश्रम में आया, बोला कि हम लोग बहुत आनंद में हैं, बहुत खुश हैं। आप लोग भी अपना सकते हैं, अपने घर परिवार में सब कोई रात का भोजन एक साथ कर सकते हैं और सुबह का प्रार्थना एक साथ कर सकते हैं। तो इस प्रयोग से क्या होगा, माँ खाना पकाने के समय हाथ जल गई थी, हाथ जल गया था, कोई देखा नहीं था, ना पति ना बच्चे, कोई नहीं देखता था पहले, लेकिन आज बेटी आके मलहम लगा दी। जिस बाप ने कमर में हाथ लगाते लगाते घर में घुस जाता है, कोई पूछने वाला नहीं था, उसको बेटा आके मालिश करना शुरू कर दिया। बाप आज पहली बार बेटा से बोला, देख बेटा, हमसे यदि भ्रमित हुआ है, हमारे आचरण से तू यदि भ्रमित हुआ है, तू भ्रमित मत हो। मैं इस परिवार का मालिक नहीं, इस परिवार का मालिक मेरे ठाकुर है।
बनना है तो मेरे ठाकुर जैसा बन, मेरे जैसा नहीं। मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस संसार में। कुछ बनना है, कुछ करना है, जिंदगी में किसी को देख के चलना है, आदर्श बनाना है तो मेरे ठाकुर को बना, उसी माफिक बना। हो सकता है मेरा जो बेटा मलखोर बन गया था, पैखाना में बैठता था, उल्टा पुल्टा चीज सीख के आता था, वही बेटा फिर से मधुमक्खी बन जाएगा, अच्छे अच्छे चीज लाएगा संसार के लिए। माँ आज बेटी को पहली बार बोली कि बेटी देख, तू जब बचपन में छोटी थी ना, कपड़ा गीला करती थी तो मैं नींद से लथपथ हो जाता था, ताक नहीं पाता था, तेरा कपड़ा बदलता था। बीच रात को हमको लगता है कि बेहोश पड़ जाएंगे, इस अवस्था का स्थिति होता, तो उस वक्त मैं फिर भी तुझे दूध पिलाती थी। आज तू यदि उलट चलती है तो मेरे मन में कष्ट होता है। ऐसा करके हृदय खोलेगा एक परिवार का। इस परिवार से ही तब समाज का कोई कल्याण होगा, परिवेश का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। ऐसे पारिवारिक बंधन होना चाहिए। विश्वास कीजिए, आसमान से कोई भगवान आके हमको बचाएगा नहीं, कोई नहीं बचाएगा। वो तो जगन्नाथ है, उसका ना हाथ है ना कुछ है, हमको पकड़ना पड़ता है। क्या करना है जिंदगी को? हम लोग, मेरे जिंदगी में यदि ऐसा कोई गुरु मिल जाता, कोई ढोंगी पाखंडी मिल जाता कि तथास्तु तथास्तु करके हमारा समूचा मन्नतें पूर्ण कर देगा, तो मैं उस गुरु को छोड़ के भाग जाता। भगवान का दिया हुआ कर्म क्षमता जो मेरे में अटूट है, उसको भी वो पाखंड नष्ट कर देता। ऐसे तो तथास्तु बोल के कुछ नहीं होता है, कर्म से ही सबको कुछ पाना होता है इस दुनिया में। रामचंद्र भगवान को पाना हुआ तो मुझे भी पाना होगा, सीधा निर्णय है। तो मैं एक पाखंडी के पास यदि जाता तो वो तथास्तु तथास्तु करके ऐसे भ्रमित करता कि हम तो भ्रम में पड़ जाते हैं, और वो बेटा जब मर जाता तो हमको लेके डूब के मरता, क्योंकि मेरा कर्म क्षमता को भी वो नष्ट कर देता। मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो कचरे में पड़ने से उठने का तरीका बोल दे, पानी में पड़ने से कैसे हाथ पैर हिला के तैरा जाता है उसको सिखा दे, वैसा गुरु चाहिए। धर्म का जगत वीरों का जगत है, यहाँ कायरों का जगत नहीं है। रोज रोज हम लोग भयभीत होते हैं, अरे उसको वो बोलेंगे क्या होगा, उसको वो करेंगे क्या होगा। निडर होकर बाँचिए, बचना है तो निडर होकर बाँचिए, क्योंकि ठाकुर बोले हैं सर्वप्रथम हमको दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। और इसलिए बोले धर्म का जगत वीरों का जगत है, कायरों का नहीं, डरपोकों का नहीं। मेरा ठाकुर ऐसे हैं। मेरा ठाकुर कोई चमत्कार नहीं जानते हैं, कोई जादू नहीं जानते हैं, वो बस मेरे साथ रहते हैं और मैं उनके साथ रह के अपार आनंद में रहता हूँ। मुझे सब समय लगता है दुनिया मेरे मुट्ठी में है। जब जब हम उनके साथ जिस तरह से गुजरता हूँ, मुझे लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ऐसा महसूस करते हैं आप अंतर से। यही मेरा ठाकुर है। मेरा ठाकुर ऐसा है। आप लोग का ठाकुर कैसे है हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा ठाकुर ऐसा है। मेरा बात यदि युक्तिपूर्ण लगा तो ग्रहण कीजिएगा, यदि युक्तिपूर्ण नहीं लगा तो छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, ये सब बेकार का बात था। लेकिन यदि इसमें कोई युक्ति लगा तो लेके आगे बढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं बाबा बैद्यनाथ धाम के वहां रहता हूं। आज तक भी मैं बैद्यनाथ का दर्शन नहीं किया, क्योंकि मैं ये निर्णय लिया हूं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो मेरा गुरु यदि महेश्वर नहीं स्वयं है तो क्यों उधर फिर जाने जाएंगे। यहाँ यदि पानी है तो तालाब में पानी पीने क्यों जाएंगे, यही पानी पी लेते हैं, नजदीक में पड़ेगा। गुरु तो मेरे नजदीक में है, उनको पी लेते हैं, उसी घूट से तो मेरा तृप्ति हो जाएगा, मेरा तृष्णा निवारण हो जाएगा। मेरा कोई अश्लेषा नहीं है, मघा नहीं है, शनि नहीं है, राहु नहीं है, केतु नहीं है, सबको हम लात मार के निकाल दिए हैं हमारा जिंदगी से, मारे हैं 1 लाख निकाल दिया। किंग कर जैसे करेंगे बेहस करी, यही निर्णय लिया है।
मेरा गुरु है। केंद्र में बृहस्पति मतलब गुरु, जिसका केंद्र में गुरु है उसका कोई भय नहीं। तो मैं क्यों भला डरने जाऊंगी सबसे। जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं हम ऐसे, मेरा सोच यही है। यदि आपको अच्छा लगा तो ये सोच लेके आप लोग भी सोच के आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं, आप लोग का सबके लिए मंगल प्रार्थना। जय गुरु।